June 14 paper 1 vectors A, B and C are such that A is 4 3, B is 2 2 and C is negative 5 2. Show that magnitude of A is equals to magnitude of B plus C. So firstly I will find out the vector B plus C here. So B plus C equals to 2 minus 5 leads to minus 3 and 2 plus 2 it's 4. Now I'm going to find out the magnitude of A. So that will be under root of 4 square plus under root plus 3 square equals to, and I'm going to find out the magnitude of B plus C here, which is under root of negative 3 square plus 4 square. On both sides we have roots, so root and root cancels. The leftover part is 4 square plus 3 square is 16 plus 9 leads to 9 plus 16. So for both cases we have 25 equals to 25, and that is your answer. For next part, given that lambda A plus mu B equals to 7C. Alright, so lambda times A is what? A is 4 and 3 plus mu times B is what? It's 2 and 2 equals to 7 times C is what? Minus 5 and 2. We need to multiply, so that will be 4 lambda, 3 lambda plus 2 mu equals to minus 35 and 14. Now we can equate it. 4 lambda plus 2 mu equals to negative 35, and we have 3 lambda plus 2 mu equals to 14. We have two equations, we need to solve them simultaneously. It's not lambda, this one is mu here, right? So 4 lambda plus 2 mu and 3 lambda plus 2 mu. So for both of the cases we have 2 mu and 2 mu same. So I can solve them simultaneously very easily. 4 lambda plus 2 mu equals to minus 35, and I have 3 lambda plus 2 mu equals to 14. I need to change the signs of all these, so it will positive negative positive negative positive negative. Alright, the benefit is 2 lambda and 2 lambda cancels, so 4 minus 3 it's lambda equals to minus 35 minus 14. You need to add the 5 plus 4 it's 9, 3 plus 1 is 4. Alright, so that is the answer of lambda. And for mu we can place the value of lambda in any of one equation, so I am using this one. So 3 lambda plus 2 mu equals to 14. The value of lambda we have, it's negative 49. So 2 mu equals to 14 plus 3 times 49. We can add them together and you will get the value of mu, it's 80.5, and that is your answer. It's December 14 paper 1-2. The position vectors of point A and B relative to an origin are A and B respectively. The point P is such that OP is mu times OA. The point Q is such that OQ is lambda times OB. The line AQ and BP intersect at the point R. Express AQ in terms of lambda A and B. First I'm going to highlight the given vectors. So we have vector OA is A, so that means this one is A. We have OB is B, this one is B. From OP is mu times OA. Alright, so that means from O to P it's mu times OA, or you can say mu times it's A, because OA is equals to A. And for OQ it says that it's lambda times OB, and OB means it's lambda times B. We need to find AQ, so we can do that from A to O and from O to Q, right? So A to O we had covered negative A plus O to Q it's lambda times B, that is equals to AQ. Alright, so lambda B minus A is your first answer. After that, express BP in terms of mu A and B. So first I need to find out the vector BA first. Alright, so BA will be what? That's very simple. From B to O it's minus B, from O to A it's positive A. We can say that BA is equals to A minus B. Alright, and what we are looking for? We are looking for BP, so I can say that it's BA and AP. Alright, I'm writing down BA plus AP leads to BP. What is BA? It's A minus B plus what is the vector AP? Now AP is what? We have this whole vector A and we have this vector mu A. So basically the difference of these two will be the vector AP. So I can say that if it's PA, so A minus mu A and with the negative sign. Alright, so AP it will be minus A
it will be minus a plus mu a equals to b p. All right, so a and a cancel, so the leftover part we have, it's mu a minus b, that is the vector bp we have. Next part, it is given that 3ar equals to aq and 8br equal to 7 times bp. Express or in terms of lambda a and b. For o to r, I can do that from o to a and a to r. All right, from o to a and then from a to r leads to or. We have the vector oa and that is equals to a plus ar is what? Ar will be 3 times aq divided by 3. All right, so it's aq divided by 3 equals to or. We have the vector aq which we had find in the first part, so that will be lambda b minus a divided by 3 equals to or. All right, if you take LCM here, that will be 3 and it will be 3a plus lambda b minus a equals to or. I'm continuing here. So 3a minus a leads to 2a plus lambda b divided by 3 equals to or, and that is your answer. Next part, it says express or in terms of mu a and b. So for or, I can say that it will be ob plus br equals to or. All right, what is ob? Ob is given, that is equals to b plus what is br? Br can be find out from this equation. If I make br the subject, so br equals to 7 times bp divided by 8, and bp we have find in the previous part, so that will be equals to 7 times mu a minus b, that is bp we had find out divided by 8. So I'm going to use the same here, 7 times mu a minus b divided by 8 equals to or. If I'm going to take LCM here, so that will be 8b plus 7 times mu a minus 7b divided by 8 equals to or. And now I can simplify the equation here, so it will be 8b minus b leads to b plus 7 times mu a divided by 8, that is your vector or. The last part, find the value of mu and of lambda. Alright, so we have the vector or in terms of mu, and that is equals to 7 mu a plus b divided by 8, and we have the vector or found in previous part, that is equals to or equals to 2a plus lambda b divided by 3. Alright, we have the vector or on both sides, so we can equate these two, or with or. So my equation will be 7 times mu a plus b divided by 8 equals to 2a plus lambda b divided by 3. At first I'm going to equate the a with the a, right? On my left side, the coefficient of a will be 7 mu divided by 8. On my right side, it's 2 divided by 3. So you can solve it. 8 2s are 16 divided by 7 3s are 21. Similarly, for lambda, I'm going to equate what? I'm going to equate b with the b. Alright, so it will be 1 upon 8 on my left side and lambda divided by 3 on my right side. So lambda equals to 3 divided by 8. These are the final values for mu and lambda, and that is our final answer. It's June 15, paper 1-2. In the diagram, AB is 4A, BC is B, DC is 7A. The lines AC and DB intersect at the point X. Find in terms of A and B DA. बड़ा सिंपल है, हमने D से स्टार्ट करना है, A पे पहुंचना है, तो क्या करेंगे? पहले हम D से मूव करेंगे C पर, मतलब हमने क्या ट्रैवल किया? हमने ट्रैवल किया 7A. फिर हम C से कहाँ आ रहे हैं? B पर आ रहे हैं. अब चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हमारे पास ये प्लस B नहीं आएगा, माइनस B आएगा. ठीक है. फिर हम B से कहाँ आए? B से हम लोग आए A पर, अगेन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हमारे पास ये आएगा माइनस 4A. तो 7A माइनस 4A इज़ 3A माइनस B, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट पार्ट, इट सेज DB. तो D से लेके B पहुंचने के लिए पहले मैं D से लेके C जाऊंगा एंड देन फ्रॉम C टू B. तो अगर मैं D से लेके C गया तो मैंने कवर किया 7A, और C से B कवर किया मैंने माइनस B, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट पार्ट, given that AX is lambda time AC, find in terms of AB and lambda AX.
अब मुझे ए एक्स का पाथ डिफाइन करना है जिसमें मुझे लैम्डा भी चाहिए। पहले मैं अपने पास ए सी निकालूंगा। ए से लेके सी पहुंचने के लिए पहले ए से लेके बी जाऊंगा और फिर बी से लेके सी आऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं ए से ए सी निकाल रहा हूं, ए से लेके बी मेरे पास है 4a और बी से लेके सी मेरे पास है b। ऑलराइट, ये मेरे पास आ गया ए सी। अब गिवन क्या है मुझे, गिवन मुझे किया हुआ है कि ए एक्स बराबर है लैम्डा टाइम ए सी में निकाल चुका हूँ, इट्स 4a प्लस बी, ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट इट सेज डी एक्स, मुझे डी से लेके एक्स जाना है तो पहले मैं डी से ए जाऊँगा और फिर ए से एक्स आ जाऊँगा, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ, पहले मैं डी से लेके ए जा रहा हूँ और फिर मैं ए से लेके एक्स आ रहा हूँ। डी ए क्या है हम पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, डी ए इज़ 3a माइनस बी प्लस ए एक्स इज़ वॉट, लैम्डा टाइम्स 4a प्लस बी। एक्सपेंड करेंगे इसको तो ये आ रहेगा 4a लैम्डा प्लस b लैम्डा और 3a माइनस b एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब 3a और 4a को साथ लिखा, 3a प्लस 4a लैम्डा माइनस b प्लस b लैम्डा, कॉमन निकालेंगे लैम्डा, सॉरी कॉमन निकालेंगे हम लोग a। तो इस ब्रैकेट में मैंने a कॉमन निकाला, मेरे पास आया 3 प्लस 4 लैम्डा प्लस, अब यहाँ पर कॉमन मैंने निकाला b, तो ये आएगा -1 प्लस लैम्डा, ये इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट, गिवन दैट dx इज म्यू db, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो db हम निकाल चुके हैं, dx हम प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके हैं। उसने कंडीशन क्या दी है हम लोगों को कि dx बराबर है न्यू टाइम्स db के। ऑलराइट, dx की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, इट्स 3 प्लस 4 लैम्डा a प्लस -1 प्लस लैम्डा b इक्वल्स टू म्यू, और db क्या है हमारे पास, इट्स 7a माइनस b। ऑलराइट, तो अगर मैं अभी तो इसको ऐसे लिखूंगा 3 प्लस 4 लैम्डा a प्लस -1 प्लस लैम्डा b, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 7a म्यू माइनस म्यू b। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कंपेयरिंग। किसको कंपेयरिंग करेंगे भाई, a और b को। तो स्टार्ट करते हैं a से। a का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इट्स 3 प्लस 4 लैम्डा, और a का कोफिशिएंट हमारे पास राइट साइड पे क्या लिखा है, इट्स 7 एंड म्यू। तो इनको हमने आपस में इक्वेट कर लिया। सिमिलरली मैं अब b को आपस में इक्वेट करूँगा। b का कोफिशिएंट यहाँ पर लेफ्ट पे क्या लिखा है मेरे पास, इट्स -1 प्लस लैम्डा, और b का कोफिशिएंट राइट पे क्या लिखा है मेरे पास, इट्स माइनस म्यू। अब दो मेरे पास इक्वेशन आ चुकी हैं। सबसे पहली चीज़, मैं इस वाली इक्वेशन में सबके साइन चेंज कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू। इस म्यू की वैल्यू को हम प्लेस करेंगे इस म्यू की जगह पर, तो ये आएगा 3 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 7 टाइम्स म्यू इज वॉट, 1 माइनस लैम्डा। 3 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 7 माइनस 7 लैम्डा। ये 7 लैम्डा हम लोग शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, तो 7 प्लस 4 इज 11 लैम्डा इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इज 4, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 11। ऑलराइट, ये लैम्डा आ चुका है। इस लैम्डा को अब हमने प्लेस करना है इस इक्वेशन में, तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 4 अपॉन 11 इक्वल्स टू म्यू, दैट मीन्स 11 माइनस 4, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर म्यू, 11 माइनस 4 इज 7 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू म्यू। ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए लैम्डा और म्यू के। June 15 paper 2-1, the 4 points O, A, B and C are such that OA given, OB given and OC given. Show that B lies on the line AC. अब lies on the line के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, हमें वो स्केलर मल्टीपल और कोलिनियर पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे AC निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, सो AC क्या होगा मेरे पास, वेरी सिंपल, AC हो जाएगा मेरे पास OC माइनस OA। OC तो मुझे नोन है, OC क्या है 24B माइनस 3A, और OA मेरे पास क्या है, इट्स 5A। तो AC का आंसर आ गया 24B माइनस 8A, और अगर मैं यहाँ पर 8 कॉमन निकाल लूँगा तो ये आएगा मेरे पास 3B माइनस A। इसी तरह अगर मुझे निकालना है AB, तो AB के लिए मैं क्या अप्लाई करूँगा, AB होगा मेरे पास OB माइनस OA। OB का वेक्टर क्या है मेरे पास 15A, OA क्या है मेरे पास 5A, 5A 15B। अच्छा, तो इनमें से मैं 5 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 3B माइनस A। इसी तरह अब मैं निकालूंगा BC। BC का क्या हो जाएगा, सिंपल OC माइनस OB।
ओ सी का वेक्टर क्या है, इट्स 24b माइनस 3a माइनस ओ बी इज़ 15b। सिंप्लीफाई करते हैं, 24 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 9b माइनस 3a। 3 कॉमन निकालूँ अगर तो क्या बचेगा, 3b माइनस a। अब अगर हम तीनों को ऑब्जर्व करें तो तीनों के बाहर के नंबर्स ये चेंज आ रहे हैं, बाकी तीनों का अंदर का ब्रैकेट सेम आ रहा है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ये तीनों पॉइंट्स ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स, ऑल राइट। सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, और इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो लाई कर रहा होगा ए सी की लाइन पर। पार्ट बी, आपको P की पोजीशन वेक्टर पता है i माइनस 4j, और आपको Q का वेक्टर पता है 3i प्लस 4j। यू नीड टू फाइंड PQ। तो पहले मैं PQ का वेक्टर निकालता हूँ। PQ का वेक्टर क्या होगा मेरे पास, इट्स OQ माइनस OP। OQ क्या है आपके पास, OQ आपके पास है 3i प्लस 7j माइनस OP क्या है आपके पास, i माइनस 4j। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ यहाँ पर तो 3i प्लस 7j माइनस i प्लस 4j। 3i minus I, it's 2i plus 7 plus 4, it's 11j। ये मेरे पास आ गया PQ का वेक्टर। अब मुझे निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। वर्किंग फार्मूला हमें पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इट्स रूट 2 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इट्स 4, 11 का स्क्वायर 121। सो PQ का मैग्नीट्यूड आ गया 125। अगर आप डेसिमल में लिखो इट सो 11.2, ये इसका आंसर है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपके पास PQ का वेक्टर क्या आया, 2i प्लस 11j divided by magnitude is what, under root of 125। and the last part it says the position vector of M, the midpoint of PQ। तो मुझे OM निकालना है बेसिकली, और M क्या है, इट्स द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो मेरे पास जो वेक्टर PQ आया है वो आया मेरे पास 2i प्लस 11j। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार PM क्या होगा, क्योंकि M इसका मिड पॉइंट है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो मैं कहूँगा 2i प्लस 11j डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया मेरे पास PM। मुझे चाहिए OM, तो मैं कहूँगा यार OP प्लस PM इज इक्वल्स टू OM। ये मेरे पास एक वेक्टर की इक्वेशन आ गई। OP मुझे मालूम है इट्स i माइनस 4j प्लस PM मैं निकाल चुका हूँ 2i प्लस 11j डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू OM। अब LCM लेंगे तो ये आएगा 2i माइनस 8j प्लस 2i प्लस 11j डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2i प्लस 2i इट्स 4i, 11 माइनस 8 इज़ पॉजिटिव 3j डिवाइडेड बाई 2। फाइनल आंसर क्या हुआ आपका, इट्स 2i प्लस 3/2j। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। June 16 paper 1-1 vectors A, B and C are such that A is 2y, B is 1-3 and C is minus 5-5. Given that A magnitude is equals to B minus C magnitude, find the possible values of y। सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा B minus C का आंसर क्या है। So B minus C will be 1 minus minus 5 and 3 minus 5। So B minus C का वेक्टर हमारे पास क्या रहेगा, 1 minus 5 is 6 and 3 minus 5 is minus 2। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सो B माइनस C मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज मतलब 36 प्लस 4 अंडर रूट, इसका मतलब हुआ ये आ गया अंडर रूट 40। अब मुझे कंडीशन क्या दी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B माइनस C। A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इट्स 4 प्लस वाई स्क्वायर विद द रूट साइन इक्वल्स टू B माइनस C का कितना निकाला आपने, अंडर रूट 40। रूट से रूट कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इज 40 माइनस 4 दैट इज 36 एंड वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 2, गिवन दैट म्यू B प्लस C इक्वल्स टू 4 टाइम B माइनस C इक्वल्स टू लेमडा 2B माइनस C, फाइंड द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड लेमडा। सबसे पहला काम मैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आएगा मेरे पास म्यू B प्लस म्यू C प्लस 4B माइनस 4C इक्वल्स टू 2b लैम्डा माइनस लैम्डा C। फर्दर मैं सिंप्लीफाई क्या करता हूँ, मैं अब इनमें b वालों को साथ में लिखता हूँ, तो न्यू b प्लस 4b प्लस म्यू c माइनस 4c इक्वल्स टू 2b लैम्डा माइनस लैम्डा C। और अब मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ गया मेरे पास b।
बचा क्या, बचा मेरे पास न्यू प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सी। बचा क्या मेरे पास, म्यू माइनस 4 इक्वल्स टू 2b लैम्डा माइनस लैम्डा सी। अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई नीड टू कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ऑलराइट, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बी से। ऑलराइट, तो मैंने पहले बी का लेफ्ट पे कोफिशिएंट क्या लिखा है, क्या लिखा है बी के साथ, इट्स म्यू प्लस 4, और राइट साइड पे क्या लिखा है 2 लैम्डा। इसी तरह मैं सी को इक्वेट करता हूँ, लेफ्ट साइड पे सी के साथ क्या लिखा है म्यू माइनस 4, और राइट साइड पे क्या लिखा है माइनस लैम्डा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट आई नीड टू चेंज ऑल द साइंस। राइट, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस म्यू। इस लैम्डा की वैल्यू को आई नीड टू प्लेस इन दिस इक्वेशन। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट्स म्यू प्लस 4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4 माइनस न्यू। न्यू प्लस 4 इक्वल्स टू 2 4s आर 8 माइनस 2 न्यू। ऑलराइट, ये 2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सो इट्स 2 न्यू प्लस म्यू, इट्स 3 म्यू इक्वल्स टू 8 माइनस 4, इट्स 4। मेरे पास म्यू का आंसर आ चुका है 4 डिवाइडेड बाय 3। ऑलराइट, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। सो नाउ इट्स 4 माइनस म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू लैम्डा। एलसीएम लिया, इट्स 3 3 4s are 12 माइनस 4 इक्वल्स टू लैम्डा, एंड लैम्डा इज़ 8 डिवाइडेड बाई 3। ये आपके आंसर आ गए म्यू के और लैम्डा के। June 16 paper 2-1, O, P, Q and R are 4 points such that OP is P, OQ is Q and OR is 3Q minus 2P. Find in terms of P and Q the vector PQ. So I can say that PQ will be what, OP plus PQ equals to OQ. Alright, अगर हम यहाँ पर PQ को सब्जेक्ट बनाएं, so PQ is what, PQ is OQ minus OP. So vector OQ is Q and vector OP is P, that is the vector PQ in terms of P and Q. उसके बाद पार्ट बी में इट सेज फाइंड QR। तो QR के लिए मैं कह सकता हूँ OQ प्लस QR इक्वल्स टू OR। QR मुझे फाइंड करना है, इसको बनाया सब्जेक्ट, इट्स OR माइनस OQ। OR आपको दिया हुआ है, इट्स 3Q माइनस 2P माइनस OQ इज़ Q। तो आपके पास आएगा क्या, 2Q माइनस 2P, दैट इज QR। Part 2. Justify your answer. What can be said the position of the points P, Q and R? The points P, Q and R are scalar multiple, first one, and the points are collinear points. These are the 2 points you need to highlight here, scalar multiple and collinear points. In part 3 it says that given that OP is I plus 3j, OQ is 2I plus j, find the unit vector in the direction of OR. So आपको OR दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3Q माइनस 2P। अच्छा, OQ आपको दिया है Q, मतलब ये जो आपको वैल्यू दी है 2I प्लस j, ये Q की वैल्यू है। तो जहाँ पर भी Q है मैंने वहाँ प्लेस किया 2I प्लस j माइनस 2। P की वैल्यू क्या है, P आपके पास है I प्लस 3j, क्योंकि OP आपको P दिया हुआ है, तो P की जगह आपने प्लेस किया I प्लस 3j। सिंप्लीफाई किया इसको, 6I प्लस 3j माइनस 2I माइनस 6j। सिंप्लीफाई किया 6 माइनस 2, इट्स 4I माइनस 3j। ये आपके पास OR का वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ I एंड J। अब आपको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, लेकिन उसके पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड। वर्किंग फार्मूला इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। एक्स इज़ व्हाट 4 और वाई इज़ व्हाट माइनस 3। सो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये आ रहेगा आपके पास 25 का रूट, दैट इज़ 5। अब हम निकालते हैं इसका यूनिट वेक्टर। सो OR का यूनिट वेक्टर क्या होगा आपके पास, दैट इज़ वेक्टर 4I माइनस 3j डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास OR का यूनिट वेक्टर आ गया। June 17 paper 1-1. The diagram shows the figure OABC where OA is A, OB is B, OC is C. The lines AC and OB intersect at the point M, where M is the midpoint of the line AC. तो midpoint का एक important word है हमारे पास. Find in terms of A and C the vector OM. तो OM के लिए पहले मैं निकालता हूँ कि मेरे पास AC क्या होगा. So AC के लिए from A to C first it's minus A और फिर C आ जाएगा, right? तो AC आ जाएगा मेरे पास minus A plus C.
तो अगर ए सी ये आ रहा है तो ए एम क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका हाफ हो जाएगा, सो दैट विल माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास ए एम आ गया। आई नीड टू फाइंड ओ एम, तो मैं ये कह सकता हूँ यार ओ ए प्लस ए एम इज इक्वल्स टू ओ एम। ओ ए मुझे बिल्कुल मालूम है, इट्स सिंपली ए एम मैं निकाल चुका हूँ, दैट इज सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ओ एम हम लोग फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम लेंगे इसका, इट्स 2a प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ओ एम। तो 2a माइनस ए लेफ्ट ओवर क्या हो जाएगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ओ एम, ये आपका आंसर। द नेक्स्ट पार्ट इट सेज दैट ओ एम रेशो एम बी इज 2:3, फाइंड बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। बी का मतलब क्या हुआ कि आपको ओ बी फाइंड आउट करना है, ऑलराइट। अब ओ बी के लिए उसने आपको एक रेशो दे दिया, क्या रेशो है कि ओ एम डिवाइडेड बाय एम बी इज इक्वल्स टू 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओ एम हमारे पास 2 होगा, ओ से लेके एम अगर 2 है तो एम से लेके बी आपके पास 3 हो जाएगा, ऑलराइट। इसका मतलब ओ से लेके बी ये आपके पास हो जाएगा 5। अब अगर आपके पास ओ एम है, ठीक है, अगर आपके पास ओ एम है जिसका रेशियो 2 है, तो ओ एम का आपके पास वेक्टर क्या है वो हम निकाल चुके हैं, दैट इज ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब अगर वेक्टर ए प्लस सी अपॉन 2 है तो रेशियो हमारे पास 2 है, जो आपको दिया हुआ है ओ एम का रेशियो 2 है, ठीक है। हमें फाइंड करना है ओ बी, तो ओ बी का वेक्टर क्या होगा, लेकिन उसका रेशियो जो है वो आपके पास 5 है। नाउ यू नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा 5a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओ बी। ऑलराइट, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 5a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2 इज 4 इज इक्वल्स टू ओ बी, ये आपका आंसर है। In part B, it says that vector I and j are parallel to the x-axis and y-axis. The vector P has magnitude 39 and has the same direction as minus 10i plus 24j. तो पहले मैं इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, कैसे आएगा, इट्स वेरी सिंपल, माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 26। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर आएगा माइनस 10i प्लस 24j डिवाइडेड बाय 26। फॉर्मूला ये होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p विद 39। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो यू विल गेट द वेक्टर p दैट इज इक्वल्स टू माइनस 15i प्लस 36j, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन, find the vector q such that 2p plus q is parallel to the positive y-axis and has a magnitude of 12 units। अब वो आपको कह रहा है पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसका एक मतलब है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 12 यूनिट्स है तो ये 12 खाली नहीं है, इट्स 12j, क्योंकि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। नाउ find the vector q such that 2p plus q is parallel to the positive y-axis and has a magnitude of 12 units. So now it will be equals to 2p plus q is equals to 12j। ये आपको कंडीशन दी हुई थी, p हम निकाल चुके हैं अबव पार्ट में, तो 2 टाइम्स माइनस 15i प्लस 36j प्लस q इज इक्वल्स टू 12। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सो माइनस 30i प्लस 72j प्लस q इज इक्वल्स टू 12j, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, q निकालना है आपने, तो q इक्वल्स टू 12j माइनस 72j प्लस 30i। सिंप्लीफाई किया, फाइनल आंसर क्या आएगा, इट विल बी 30i प्लस माइनस 60j, दैट इज योर वेक्टर q। एंड द लास्ट पार्ट इट सेज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ q इज इक्वल्स टू k√5। तो हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ q, क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 30 स्क्वायर प्लस माइनस 60 स्क्वायर। 30 स्क्वायर इज 900, 60 स्क्वायर इज 3600। सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट 30 अंडर रूट 5। इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास 30 है, ये आपका आंसर है।